Good morning, students. So today in this lecture we will talk about Ode on Agris and Urn. So the writer of the poem is John Keats, and we have already discussed the things about John Keats. We have discussed his background and his contemporary, and some of his works are also there in the lecture. Okay, so this poem was written in 1819, and first time it was published anonymously in Annals of the Fine Art for 1819, and in same year Keats got contracted tuberculosis. Okay, so the poem is written in 5 stanzas, and each stanza contains 10 lines. So the total lines of the poem are 50. Okay, and most importantly, it is an example of ekphrasis. Ekphrasis mean a work of art about a work of art. So if we talk about this poem, an urn is a vessel. Okay, you will not be getting the poem if we do not talk about an urn. So an urn is a vase, or often it is covered with something. Okay, so it is a container of the remainings of a person. जिस तरह से हमारे यहाँ हम देखते हैं किसी की अस्थियाँ किसी बर्तन में या फिर किसी मटके में इस तरह से रखी जाती हैं, तो अर्न एक कंटेनर होता है जिसमें वेस्टर्न जो ग्रीक लोग थे या फिर जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो किसी की जो अस्थियाँ होती हैं वो उसमें सजो के रखते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल. ओके, सो अर्न जो है इस पे कुछ नक्काशियाँ करी हुई होती हैं या फिर इसको बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है. ये मिट्टी का भी हो सकता है, ये मार्बल का भी हो सकता है, या फिर किसी और चीज़ का भी ये बना हुआ हो सकता है. तो इट इज़ एन वर्क ऑफ आर्ट, एंड द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट the vessel, or talking about the urn. So it is an example of a vessel. If we go in definition, then we can say that it is a device known as ekphrasis, and the poet talk about painting, drawing, sculpture, and other form of visual art. And if we proceed our discussion further, then we can say that we can write these things about music also. We can write such kind of poetry, and we can create such kind of artistic work about dance and about painting also. So wherever a writer is talking about a artist work of art, then it is an example of ekphrasis. Okay, so now it's time to switch to the poem, and time to discuss the poem line by line. So the poem begins, and poem reads: "Thou still unravish'd bride of quietness, thou foster child of silence and slow time." Okay, so we in the beginning of the poem we can get some ideas that the word thou mean you. So here he is addressing someone. Okay, it might be a person, it might be someone else, or it might be anything. Okay, so with this salutation, or with this word, we can get an idea that he is talking about, he is addressing someone. Okay, so when a writer address in a poem, then it is called apostrophe. Okay, so we in the beginning of the poem we are getting an example of apostrophe. So thou still unravished bride of quietness. Here unravished mean untouched, or it is getting an image that it is still virgin. Whoever is being discussed in these lines, or whoever is being addressed, is still unravished. It is not impure, or it is still virgin, bride of quietness. So here we are getting another thing, is that the whatever is being addressed has been married with
quietness. But no, we cannot marry anyone with quietness, or quietness cannot be a broom or something like that, cannot become a wife or a husband kind of things. Okay, so here we are getting a personification also. Okay, so हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि you are still unravished bride of quietness. तुम अभी भी पवित्र ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस हो, मतलब कि तुम किसी एक शांत जगह में पड़े हुए रहते हो. यू आर प्रोबेबली द वेसल इज पुट इन ए म्यूजियम. ओके, सो फर्स्ट लाइन says that thou you again he is addressing foster child of silence and slow time, and you are not legitimate son of silence and slow time, but you have been adopted by silence and slow time. Mean you are kept in silence and you are bearing the time, because here he want to say that the vessel is a very ancient, ये पुराने समय से बिलोंग करता है. ठीक है, तो ये यहाँ कहना चाह रहा है कि तुम क्या हो, पवित्र हो. यू आर ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस बट स्टिल यू आर अनरेविश्ड. तुम अभी भी पवित्र हो, यू आर स्टिल ए वर्जिन थिंग. एंड he is saying that it might not seem like on the surface, but it is still unravished. Okay, so in these two lines he is addressing and he is naming him two things. Okay, unravished bride and foster child. unravished bride है और क्या है, foster child भी है. So in these two lines we are getting first thing is apostrophe, second thing is bride of quietness or foster child of silence and slow time. In both we are getting personification, because a vessel cannot be foster child of anything. Okay, and silence and slow time, and then there is repetition of silence and slow time, there is repetition of same sound. So here we are getting an example of alliteration also. And then in next line, Sylvian historian who canst thus express. Okay, Sylvian historian, he is naming him third thing. Okay, first unravished, second foster child, now he has been named Sylvian historian. Sylvan historian mean a rustic belonging to the village or belonging to the forest. Okay, historian, तुम कोई जंगल में रहने वाले historian हो, who canst thus express, who has ability to tell the stories, or who has ability, who can tell or express a flowery tale more sweetly than our rhyme. Okay, so here we have got exact idea that the writer here is addressing to the Grecian urn, and he is naming him unravished bride, foster child, and Sylvian historian, and saying that you can tell a story or you can tell a tale more sweetly than our rhyme. Our rhyme here represent for our poetry और लिटरेचर. ये यहाँ कहना चाह रहा है कि whatever you are saying or whatever you are telling a story, an cannot speak, और बोल नहीं सकता, but something is written and engraved in on the urn. So उससे हम कोई एक स्टोरी निकाल सकते हैं, एंड वो स्टोरी उतनी अच्छी है या फिर बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकती है. हमारी जो कविताएं हैं, और राइम का मतलब यहाँ है कि हमारी जो कविताएं हैं, जो कविताएं इंसानों के द्वारा लिखी जाती हैं, या फिर मैं या फिर मेरे जनरेशन के लोग, तो कवि कह रहा है कि मैं या मेरे जनरेशन के लोग जो कविता कह रहे हैं, तुम्हारी जो कविता है, तुम्हारी जो टेल है, वो उनसे भी क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है. आगे देखो, वॉट लीफ फ्रिंज्ड लिजेंट हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप. वॉट लीफ फ्रिंज्ड, कौन सी जो चीज़ें हैं
जो लीफ फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब होता है किनारे पे जो फूल पत्तियों की नक्काशी करी जाती है किसी भी चीज़ पे, उनके बारे में बात कर रहा है। ओके, व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लिजेंड हॉर्न्स अबाउट दाई शेप, अबाउट दाई शेप, तुम्हारी जो शेप है, मतलब तुम्हारा जो आकार है, तुम्हारी जो शेप है, उसके चारों तरफ किस तरह की ये जो लीजेंड्स हैं वो हॉन्ट कर रही हैं। हॉन्ट का मतलब देखो थोड़ा सा स्ट्रेंज आइडिया दे रहा है। हॉन्ट कौन करते हैं? कोई पागल आदमी कर सकता है या फिर कोई भूत प्रेत कर सकता है। तो कह रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं वो तुम्हारे चारों तरफ से हॉन्ट कर रही हैं। द लीजेंड्स ऑफ डाइटीज और मोर्टल ऑफ और ऑफ बॉथ, ये जो तुम्हारे चारों तरफ जो लीजेंड्स लिखी गई हैं, ये जो कहानियाँ लिखी गई हैं या फिर जो इनग्रेव्ड हैं, इनमें जो कहानियाँ कही जा रही हैं, आर दिस लीजेंड्स आर ऑफ डाइटीज और डिटीज और मोर्टल्स, क्या ये भगवानों की कोई कहानियाँ हैं या फिर जो देवीय चीज़ें हैं उनकी कहानियाँ हैं या फिर जिंदा इंसानों के बारे में, मोर्टल्स जो मृत प्राय हैं उनके बारे में है, और ऑफ बॉथ या फिर दोनों के बारे में ये कहानियाँ है। इन टेम्पे और द डेल ऑफ अर्काडिया, क्या ये अर्काडिया के बारे में बात कर रहा है या फिर टेम्पे के बारे में बात कर रहा है? तो दीज आर टू एंशिएंट सिटीज एंड टू एंशिएंट वैलीज इन ग्रीक टाइम। ओके, सो ये कह रहा है कि ये किसी पुराने समय के बारे में कोई कहानियाँ कह रही हैं या फिर किसी इंसानों के बारे में बात कर रही है या फिर किसी देवताओं के बारे में बात कर रही है या फिर ये इन दोनों के बारे में कोई कहानी कह रही है। ओके, नेक्स्ट लाइन, व्हाट मैन और गॉड आर दीज, ये कौन लोग हैं, ये कौन से भगवान हैं? What maidens loth, and what maidens, maiden का मतलब होता है कंवारियाँ, and what maidens loth का मतलब है कि कौन सी कंवारियाँ हैं जो भाग रही हैं। What maid pursuit, loth का मतलब होता है डिसएग्री करना, एंड वॉट मेड परस्यूट, और ये कौन लोग हैं और किस तरह का ये लोग पीछा कर रहे हैं। परस्यूट का मतलब होता है किसी का पीछा करना। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, एंड कौन जो लोग हैं और किस तरह से ये लोग एक दूसरे से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एस्टेसी। देखो इन लाइन्स में हमें कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं दैट देयर आर सम मेन्स and there are some shapes that might be a representation of God also, and there are some maidens also, and the maidens are being pursued, maidens के पीछे कोई लोग दौड़ रहे हैं, and these maidens are trying to escape from the pursuits। ठीक है, जो लोग उनको परस्यूट कर रहा है उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कह रहा है व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और किस तरह से देखो ये कोशिश कर रही हैं अपने आप को बचाने की। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स आर देयर। ओके, देयर आर ऑल्सो सम पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, दीज आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड व्हाट वाइल्ड एस्टेसी, एंड ये जो माहौल है वो माहौल कैसा है? एस्टेसी का है, उन्माद का माहौल है। वहाँ बहुत ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है? उन्माद सा दिखाई दे रहा है। तो इन दीज लाइन्स ही इज़ आस्किंग। अब यदि हम शुरू से देखने की कोशिश करें, यदि इसको हम शुरू से यदि देखने की बात करें तो वो कह रहा है कि तुम हो क्या? अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस एंड दाउ फोस्टर चाइल्ड, और तुम क्या हो? फोस्टर चाइल्ड हो साइलेंस एंड स्लो टाइम। और साइलेंस स्लो टाइम का मतलब ये कह रहा है कि तुम क्या है, लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हो या फिर पड़े हुए हो। देन वो कह रहा है सिल्वियन हिस्टोरियन, तुम एक हिस्टोरियन हो जो तुम जंगलों के बारे में कोई कहानी कह रहे हो, तुम देहात के बारे में कोई कहानी कह रहे हो, और तुम जो कोई कहानी कह रहे हो तुम्हारे ऊपर जो लिखी हुई, तुम्हारे ऊपर जो इनग्रेव्ड है और जो पेंटिंग टाइप नहीं जो चीज़ें तुम्हारे ऊपर बनाई गई हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, जो कि हमारी जो कविताएं हैं, हम इंसान जो कविताएं लिखते हैं उससे कहीं बेहतरीन कविताएं तुम कह सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ भगवान का चित्रण भी किया गया है, लोग आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं, कंवारियाँ भागने की कोशिश कर रही हैं, कुछ लोग पाइप्स बजा रहे हैं और वहाँ एक एस्टेसी का माहौल है। तो
तो ये वाला स्टेंजा हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले स्टेंजा में, अगले सेशन में हम बात करेंगे आगे वाले स्टेंजा के बारे में। धन्यवाद।